फेसबुक लाइव हो गया। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਮਾ ਪੇਜ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਵਿਹਾਰ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਨੇਰ ਔਰ ਸਾਮਨੇਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, लाइव ਅਸੀਂ जोड़न की कोशिश करांगे। तो साडे सहयोगी साथी अशोक जी लुधियाने तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। तो वो सानू बिल्कुल लाइव जो उत्थे इस वेले प्रोग्राम किस तरह हो रहा सानू सारी जानकारी देंगे। अशोक जी तुसी सारा दिखा दो जिस तरह भी इस वेले तकशला जिहड़ा ओहदा तकशला दे विच किस तरह दी तैयारियां हन, किस तरह प्रोग्राम है सारा चल रहा है। ओके सर, थैंक यू। इस टाइम मैं एंट्री गेट तो अंदर एंटर कर रहा जी जी। हाँ, सांची गेट इस वेले तुसी लाइव साडे नाल तकशला महाविहार तो लुधियाने तो साडे नाल जुड़े हो और इस फेसबुक के माध्यम राही और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस पेज ਨੂੰ ਦਮਾ ਦੇਵ ਦਾ जो पेज है इसनूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो ताकि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोग साडे नाल जुड़ सकन और अज दी जिहड़ी सैरामनी आ उसका लाइव जिहड़ा उत्थों पूरा नज़ारा देख सकन। सो अशोक जी तुसी इस वेले कित्थे हो? हाँ आनंद जी जी ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ मैं इस वेले महात्मा बुद्ध जी दी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਟਰੀ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ठीक है जी। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ये ले जाओ जी। हाँ जी ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆਏ ਸੀਗੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ठीक जी ठीक। ਬੋਧੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक। जिस तरह साथियों तुसी देख रहे हो ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੜਦੇ ਆ जी ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੈਚੂ ਆ, ठीक ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी सो ਤੁਸੀਂ देख ही रहो है स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। वेरी नाइस जी अशोक जी तुसी एक मिनट जरा सांची गेट ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਚੀ ਗੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਚੀ ਗੇਟ ओरिजिनली ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਉਹੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੇਟ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੂਬਹੂ 100% ਉਹੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ
ਔਰ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੇਟ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਾਂਚੀ ਗੇਟ ਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੇਟ ਆ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਮਪਾਲ ਰਾਹੀ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਖਸ਼ਲਾ ਮਹਾਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 2006 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਟੋ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਖਸ਼ਲਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੇਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਔਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਹਾਥੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਦੋ ਹਾਥੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਝੰਡੇ ਦੇ 5 ਰੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੀਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖੇ ਹੋ। 28 ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੋਜ ਜੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟੰਗਕ ਮਾਰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣ। ਓਕੇ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟੰਗਕ ਮਾਰਗ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਸਟੈਂਡ ਮਾਰਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਂਚੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਤਖਸ਼ਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਂਚੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਂਚੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਮਾ ਪੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤਖਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਨੇਰ ਔਰ ਸਾਮਨੇਰੀ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਤਕਸ਼ਲਾ ਦੇ ਮਹਾਥੇਰੋ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਬੰਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਵਿਹਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀ UK ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇ ਜੀ ਸਾਡੀ UK ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਕੈਂਥ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸੱਲਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਮਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਮਨੇਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੋ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਦਮਾ ਪੇਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਕਸ਼ਲਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। कौन नीचे हुआ लिफाफे के पास? ये पूरा जो अंदर सीमा दे इनसाइड जो बिल्डिंग है दम हॉल का पूरा अंदरला दृश्य तुसी इस वेले देख रहे हो। बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है।
बहुत दूरों दूरों लोग इस बुद्ध विहार के दर्शन करन आउंदे हन। और आप सब नूं भी बेनती है कि तुसीं जदों भी मौका मिले किते बाहरों पंजाब च जाते हो या पंजाब के निवासी जरूर एक बारी जाओ और दर्शन करो। इस स्टैचू देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये भोजन हॉल है। सो मैं हुण बेनती करूँगा अशोक जी, जिस तरह तुसी पूरा स्लाइड शो देखा जिहदे विच असीं तुहानूं पूरी इंट्रो दिखा ली और साडे साथी अशोक जी वो साडे नाल जुड़े हन लाइव, वो पूरा लाइव दृश्य सानूं दिखा रहे हैं अज दी सैरामनी दा। सो मैं अशोक जी नूं बेनती करूँगा कि वो अंदर विहार ते जाण ते सारी अंदरली जो सैरामनी इस वेले चल रही है वो सानूं लोगां तक रूबरू कराउण। तो अशोक जी प्लीज थोड़ा जिहा अगे तुसी कैमरा हौली हौली अगे नूं लैके जाओ ताकि सारे लोग जिहड़े बाहर बैठे हैं फेसबुक के माध्यम राਹੀਂ साडे नाल जुड़े हैं वो दर्शन कर सकन अज दे प्रोग्राम दे और जान सकन कि इस प्रोग्राम की की महत्ता है। हाँ बाली जी, वो मेन स्क्रीन ते लियाओ वो जेड़े ना। हाँ इस वेले मनोहर जी आ मेन स्क्रीन ते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हाँ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ मनोहर जी हुणी फिर आ गए। हाँ जी, पूरा अंदर का दृश्य है जो प्रोग्राम बहुत जल्दी ही शुरू हो रहा है। बिल्कुल तुसी अंदर लाई जाओ बिल्कुल बुद्धा के स्टैचू को अशोक जी। ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। हाँ जी अशोक जी तुसी बोलते रहो, थोड़ा थोड़ा दसी जाओ सानू जानकारी अगे लै जाओ। बिल्कुल ओके ओके जेड़े बिल्कुल अंदर हाँ जी, हाँ जी हाँ जी थोड़ा दिखाई जाओ सारा घूम के अशोक जी, ताकि सारे लोग दर्शक जिहड़े साडे नाल जुड़े हैं वो पूरा नज़ारा देख सकन। और मैं जिहड़े साडे स्कॉलर भी नाल हैगे बैठे तो मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा वो म्यूट रखन, जिद्दां ही आपां फिर प्रोग्राम शुरू करांगे तां फिर वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ अशोक जी बिल्कुल तुसी बहुत वधिया ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया है जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार लुधियाने दे विच है। और हिंदी ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ आनंद जी। जी 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 अशोक जी आप चलते जाइए। ओके ओके हाँ जी हाँ जी आप थोड़ा कुछ बोले हमें बताएं भी कैसे कुछ लोग हैं या कैसे माहौल है अभी। लोग आ रहे हैं जो मेन प्रोग्राम वहां से शुरू होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि भगवान बुद्धा का स्टैचू स्थापित है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा पोर्ट्रेट बहुत अच्छा सजा के रखा हुआ है और आप दर्शन कर सकते हैं। और जो उपासक लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। सो मैं बेदी साहब हरबंस बेदी जी आपको मैं चाहूंगा कि आप म्यूट करके थोड़ा सा बताएं जी। हाँ तो ये ऊपर जो पंचशील के कलर लगे हुए हैं वहां पर क्योंकि बहुत ऊंचा है तो जब कोई स्पीकर बोलता था धम्म देशना या होती थी तो वो आवाज ठीक नहीं आती थी, तो वो आवाज के लिए लगाया है और बहुत ब्यूटीफुल बन गया कि वो 5 जो हमारा पंचशील के झंडे है, झंडे के कलर है वही उसमें लगाए गए हैं। जैसा आपने कहा कि ये जो स्टैचू है ये थाईलैंड से स्पेशल ऑर्डर करके बनाया गया था
और इसकी हाइट जो है ऊपर आप ऊपर का दिखाइए थोड़ा, जो विधि साहब बोल रहे हैं आप भी बोलिए और दिखाइए थोड़ा सा ऊपर को। जी हाँ, सर तो जी। ये विधि साहब थोड़ा आप म्यूट रहिए, तो अशोक जी आप बोलते जाइए। यही है सर जो साउंड के लिए ऊपर बनाया गया है। अच्छा जी, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, एकदम ब्यूटीफुल है। जी 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 तो साथ में यहाँ पे बाबा साहब की भी फोटो रखी गई है। जी हमेशा रहती है। जी हाँ, यहीं पे रहती है ये। उसके बाद ये आप देख रहे हो अपने गुरु जी को, जी हृदय की मूर्त जो स्थापित की गई है। जी 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 जी। अभी अशोक मैं आपको जी के सारा हमें यहाँ बता। पे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल इनके इतिहास में जो भी यहाँ लिखा है दीवारों पे, मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। जी धीरे धीरे वन बाई वन करके सभी दिखाऊंगा मैं आपको। जी उसके उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा पीछे की साइड, जहाँ पे जो भिक्षु बनने के लिए बच्चे और बच्चियां आई हैं जी। मैं मेरे उनकी। जितने भी साथी स्कॉलर जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बेनती करूंगा वो म्यूट रखिए, आपको सिर्फ अशोक जी बोलेंगे। अशोक जी आप प्लीज एक्सप्लेन करते जाइए। ओके सर, ओके। तो ये एक साइड का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी दूसरी साइड का दिखाऊंगा बाद में। तो उसके बाद मैं फिर आपको ऊपर लेके जाऊंगा, ताकि वहाँ जो बच्चे आए हैं भिक्षु बनने के लिए, उनको उनकी अभी क्लास चल रही है। जो अपने प्रज्ञाबोधि बनते जी हैं, वो उनका पेपर ले रहे हैं, जिसको टेस्ट बोलते हैं, ट्राई टेस्ट। उसके ठीक बाद में जाकर फिर उनको यहाँ लाया जाएगा। तो अभी ये मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, जो दूसरी साइड का दृश्य है। थोड़ा लाइट की इसीलिए दिक्कत है कि बाहर से धूप आ रही थी। ये पूरा दीवार पे दूसरी साइड बनाया हुआ है। कभी आए कभी भी पंजाब में तो ज़रूर आइए, बहुत ही बढ़िया है। देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल। अभी मैं बाहर लेके बैक साइड पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए। धीरे धीरे लेके जाऊंगा। अभी जो हम लोग बैक साइड के लिए जा रहे हैं। ये रूम बने हुए हैं। यहाँ पे हर एक को ये कैंटीन बना है खाने के लिए, यहाँ पे खाना बनता है और ये सबको वहाँ सप्लाई करते हैं। अभी मैं आगे लेके जाऊंगा। बाहर से आए हुए सभी गेस्ट को यहाँ पे रूम मिलते हैं, रहने के लिए बनाए हुए हैं सबके लिए। ये मैं बिल्कुल बैक साइड पे आ गया हूँ, ये आप देख सकते हो। जी ये देखिए, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। ये चक्कर जो है ये दोनों साइड पे बना हुआ है। पहली साइड भी आपको दिखाया, ये दूसरी साइड है। जी ये देखिए, जी जी अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। ये बेसमेंट है, बेसमेंट की साइड जा रहा हूँ।
अशोक जी साथ में बताते भी जाइए ताकि लोगों को पता चलता जा रहे। एक तो ये पीछे की साइड बहुत बड़ा हॉल है, अब चाय का पूरा प्रबंध है, खाने पीने चाय पानी का खाने का पूरा प्रबंध है, नाश्ते का। देखिए कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरी तैयारी चल रही है, पूरी लोग श्रद्धा से काम कर रहे हैं। हमारे बंते जी भी यहाँ पे बहुत हैं। ये जो साइड पे पूरे रूम देख रहे हो, ये सब गेस्ट के लिए है जो बने हुए हैं। मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ। अभी मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे छत पे आ गया हूँ। आसपास का पूरा आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं जो बच्चों की क्लास चल रही है वो भी दिखाऊंगा। ये इन सबका टेस्ट चल रहा है, ये आप देख सकते हो। ये महाराष्ट्र से, बॉम्बे से वो भी लोग आए हैं, वो आप देख सकते हो। जी तो अशोक जी अगर हो सके तो अपने किसी मंत्री से हमारी बात करवाइए ताकि थोड़ा सा डिटेल में बता सके विदाउट। पंजाब प्रधान जी विजय सांपला जी, गांधी इधर आ जाओ, बहुत शब्द नहीं हो नीचे डब्बे बिछाए ना किसी, या देखो इधर मर जा कर दो। चलो इधर हो जाओ, कोई ओके ओके। प्रधान जी तुसी बोलो, लाइव चल रहा है। हाँ जी। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਸਿਕ ਫਾਸਿਕਾਓ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਅੱਜ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭਿਕਸ਼ਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਂਪ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਵਰਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਸਕ ਉਪਾਸਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 47 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਰਹੇ। 47 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਲ ਔਰ 7 ਲੇਡੀਜ਼।
तो इस तरह करके 47 उपासक आज हमें भिक्षु बनना है और भिक्षु तो साडा सारे उपासकां दा श्रद्धालुआं दा धम्म प्रेमियां दा फर्ज बनता है कि असीं भिक्षु संघ का तन मन धन दे नाल सहयोग करिए और भिक्षु संघ के वास्ते और नवे जो भिक्षु बन रहे हैं उन्होंने वास्ते खाने का उन्होंने वास्ते रहायश का ते होर जो भी जरूरतमंद चीज़ां उन्होंने करवाइए और हर तरह के नाल दान ये एक बहुत ही पवित्र काम है जो पंजाब के इतिहास के पहली बारी रहा है तो ये भिक्षु प्रज्ञा पूजी जी और बाकी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ प्रोग्राम शुरू करके सानू और पंजाब में बहुत मान बख्शा और असी उन्होंने सदा ऋणी रहांगे कि उन्होंने पंजाब के मुफ्त चलाओ के वास्ते तन मन धन के नाल नवा बुद्धा जाति मशहूर जी इसी तरह तुसी हाँ जी सर ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਰਹੀ ਸੀ हाँ जी स्टूडेंट्स का पूरा एग्जाम चल रहा है अशोक जी एक मिनट मैं हरभजन सांपला जी ने गल करनी चाहांगा जिस तरह साथी तुसी जुड़े हो तक्षला महाबुद्ध विहार लुधियाने से हमारे साथ फेसबुक दमा पे जो फेसबुक पेज है वहां से आप लाइव जुड़े हैं सो पंजाब बुद्ध सोसाइटी पंजाब रजिस्टर लुधियाना जो देख रेख से जो तक्षला महाबुद्ध विहार चलता है और जिसके अंदर हमारे महाथेरो प्रज्ञा बुद्धि जी उनके साथ ही सहयोगी जो पंजाब बुद्ध सोसाइटी यूके उसके सहयोग से और जो हमारी यूके की टीम है जिसके अंदर हरबंस बिरदी जी और कश्मिंदर कुमार जी और मनोहर बिरदी जी धर्मचंद महेश जी जो ये दमा वेब की जो टीम है वो उसी सहयोग से आप तक ये प्रोग्राम लाइव हम पहुंचा रहे हैं जो कैनेडा की हमारी टीम है उससे परम कैंथ जी और सुरजीत बैन जी महेंद्र सलन जी जगीरी बैन जी और हरजिंदर एंड चंचल मल जी जो वो भी इस प्रोग्राम के सहयोगी हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं अभी हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ की स्टूडेंट्स की क्लास लगी हुई है जो पहले रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्टर के बाद वो फिर 10 दिन का जो कैंप है वो उसके अंदर शामिल होते हैं जैसे हरभजन सांपला जी ने बताया कि टोटल रजिस्ट्रेशन 60 हुई थी 60 के करीब और जो 45 जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम चल रहा है और जो 10 दिन के लिए सामने और सामने जो बनेगी ये जो सामनेर और सामनेरी कैसे बनते हैं जो उसका सारा वो हम हमारे जो स्कॉलर जो राइटर्स हैं वो हमें बताएंगे और फिर कहते हैं अशोक जी के पास आप बताइए वहाँ का पूरा हाल आप जी से बात करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ठीक है सर ठीक अशोक जी अगर बंटी जी से बात हो सकती तो हमारे कराने की कोशिश कीजिए प्लीज
सर वो अभी बाहर नहीं आए, अभी अच्छा रूम जी। में ही है, जी जी। इसीलिए मैं उन्हीं की वेट कर रहा हूँ। जैसे आते हैं मैं आपकी बात किसी दूसरे भंते जी से बात कर ले। बिल्कुल सही आ रहा है। मेरे हिसाब से वो रूम में हो सकते हैं। वो मैं देखता हूँ रूम की तरफ चल के अगर मिल जाए। जी। सो मैं अभी देखो अगर हो सके तो किसी से बात वहाँ से, नहीं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना आपने। अगर नो नो, रूम में नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अशोक जी। आप अगर या अशोक जी आप बाहर आ जाइए थोड़ा तो, और आप बाहर का ही हमें जो दृश्य है जो दिखाइए प्लीज। हाँ जी, ओके ओके। हाँ जी। तो आप ऐसे करते हैं अशोक जी, आप थोड़ी देर के बाद हम फिर लाइव होंगे। तो मैं अभी आप ऐसे ही प्रोग्राम को देखते रहिए। और अशोक जी, मैं अभी जो विजय साहब आपसे कुछ सवाल है जो मैं आपको करना चाहूंगा। उससे सबसे पहले ये है कि विजय साहब जो सामनेर और सामनेरी जो थेरी और महाथेरी उपसभ्यता जो जो ये सारा ही आप हमें एक्सप्लेन करिए, कीजिए कि ये कैसे बनते हैं, इसकी क्या महत्ता है। हाँ, जो सामनेरी है वो आप गर्ल लेडी को स्टूडेंट कह लीजिए, और जो जी सामनेर है वो लड़का स्टूडेंट है। और सामनेर के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि त्रिशर्ण पंचशील और अष्टांग मार्ग लेने हैं। लेकिन जब कम से कम 5 साल स्टडी करने के बाद वो उपसंपत्ता ले सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा 8 साल का सामनेर बन गया, 5 साल के बाद 13 साल का नहीं, उसको 20 साल तक इंतजार करना पड़ेगा भिक्षु बनने के लिए या भिक्षुणी बनने के लिए। तो फिर जब वो लगातार 10 साल भिक्षु भिक्षुणी बनने के लिए, उसको उपसंपत्ता कहते हैं। और वो तकरीबन पाली भाषा में जो भगवान बुद्ध के समय थी, 6-7 पेज है भिक्षु बनने के लिए या भिक्षुणी बनने के लिए। वो सारा जवानी याद करना पड़ता है। और देखो बाल कितने प्यारे हैं। और लड़के को भी लड़की को भी सर की पूरी शेव करनी पड़ती है। और थाईलैंड में तो ये जो आंखों के ऊपर है, ये भी शेव करने पड़ते हैं। इंडिया में नहीं करते, श्रीलंका में नहीं करते, लेकिन थाईलैंड में तो यहाँ भी शेव करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी उपसंपदा थाईलैंड में हुई थी। तो जब 10 साल लगातार वो 10 वर्षावास कर लेते हैं, तो फिर वो जो भिक्षुणी होती है वो थेरी बन जाती है, और जो भिक्षु होता है वो थेरा बन जाता है। और इसी तरह 10 वर्षावास और करने के बाद, यानी 20 वर्षावास करने के बाद फिर वो
महाथेरी और महाथेरो बन जाते हैं 20 साल के बाद। तो ये प्रोसेस है और बहुत अच्छी बात है ये जो आज सामनेर और सामनेरियां बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं तो थाईलैंड में उपसंपत्ता ली थी, यानी भिक्षु बना था मैं 3 महीने के लिए। और थाईलैंड में तो ये एक रिवाज है कि हर मर्द को अपनी लाइफ टाइम में भिक्षु एक बार बनना पड़ता है, चाहे महीने के लिए चाहे 2 महीने के लिए। यहाँ तक कि जो वहाँ का राजा है उसको भी एक बार चीवर लेना पड़ता है। तो ये वहाँ पर बहुत अच्छी है। और घर में जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो मेजॉरिटी, ऐसे नहीं कि 100%, जो घर में बड़ा लड़का होता है वो भिक्षु बनता है। जी, मैं अभी कैंस साहब से बेनती करूंगा कि वो भी थोड़ा आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं जो आज हमने लाइव किया है। हाँ जी, सभी सुनने वालों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और बड़ा श्लाघायोग है। जो बनते जी, प्रज्ञा बोधी जी और जो कमेटी है वहाँ की, उन्होंने ये अरेंज किया है। इससे जो हम चाहते हैं कि जो बुद्धिज्म का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि हम भारत को प्रबोध भारत बनाएं, तो वो उसके उपराले के लिए ये एक और बढ़ता कदम है। हम सभी कमेटी वालों का और भंते प्रज्ञा बोधी जी का, और इंग्लैंड में जो साडे बहुत सीनियर साथी हैं, बिरदी साहब हैं, मनोहर बिरदी जी, एचएल बिरदी जी हैं, इन्होंने काफ़ी तक्षशिला में अपना बहुत बड़ा योगदान डाला हुआ है। और इंग्लैंड के और भी साथी हैं जिन्होंने बुद्ध विहार बनाने में बड़ा श्लाघायोग जो कदम और काम किया है, वह हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं और बिरदी साहब से और कुछ जानना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी भिक्षु और भिक्षुणी की जो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं बच्चे, इसके बारे में जो थाईलैंड का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करें तो हमारे लिए, और जो फ्यूचर में लोग इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा उत्साह मिले। क्योंकि इन्होंने तो बहुत दुनिया घूमी और थाईलैंड में इन्होंने काफ़ी विजिट किया है और बुद्धिज्म का काफ़ी इन्होंने ज्ञान है, इनको किताबें भी लिखी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एचएल बिरदी जी से कि थोड़ा और एक्सप्लेन करें ताकि जो हमारे लोग हैं बुद्धिज्म से जुड़ें और बुद्धिज्म ग्रहण करें, जो बाबा साहब चाहते थे, जो बुद्धा का रियल शिक्षा है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हाँ साथियों, देखो बुद्धिज्म में 2 मेन ट्रेडिशन है, एक थेरावाद है, एक महायान है। तो थाईलैंड जो कंट्री है वो थेरावादा है, श्रीलंका भी थेरावादा है, बर्मा भी थेरावादा है, कंबोडिया भी थेरावादा है। तो ये थेरावादा की जो ट्रेडिशन है वो एक समान होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसमें फर्क ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि थाईलैंड में हर मर्द जो है वो जिंदगी में एक बार जरूर भिक्षु बनता है, चाहे महीने के लिए चाहे 2 महीने के लिए। लेकिन श्रीलंका में कुछ ऐसा है कि जो एक बार भिक्षु बनता है वो लाइफ टाइम के लिए बनता है। तो इसलिए अगर हम, जैसे मैं 3 महीने के लिए बनना था, मेरे साथ भारत से 4 लोग और थे, अगर हम श्रीलंका में जाकर ये कहते कि हमें 3 महीने के लिए भिक्षु बनना है तो वो कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते, क्योंकि श्रीलंका में तो ऐसा ट्रेडिशन है कि आप महीने के लिए 2 महीने के लिए जितनी देर चाहते हो भिक्षु बन सकते हैं। तो इसलिए थाईलैंड में वो ऐसे कोई नहीं है कि भाई आप तो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए बन रहे हो। तो लेकिन ट्रेडिशन जो थेरावादा की है वो एक ही है, और जो महायान है जो बुद्ध थेरावादा से अलग होकर बने थे उनका अलग सिस्टम है। जी जी। साथियों, जैसे आप जानते हो कि आप आज हमारे साथ तक्षशिला महाबुद्ध विहार से लाइव जुड़े हुए हैं, जो आज वहां से एक विशेष प्रोग्राम जो लिखा गया है जिसके अंदर 10 दिन का सामनेर और सेमिनरियां
बनने जा रही हैं, उसके बारे में बिरदी साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बिरदी साहब इसके साथ ही एक मेरा सवाल और है कि जैसे आपने सामनेर और सामनेरी थेरी और महाथेरी उपसमता के बारे में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सो सामनेर बनने के लिए और उपसमता बनने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है, कैसे बनते हैं ये, इस इसके लिए क्या चाहिए हमें, कैसे इसका होता है? देखो, अगर भिक्षु बनना है, उपसंपदा लेनी है, अगर शादी नहीं हुई है तो माँ बाप की तरफ से इजाजत चाहिए। जैसे अगर शादीशुदा है तो वाइफ की ओर से इजाजत चाहिए, क्योंकि मैं थाईलैंड में जाकर बना, मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं थी, तो उनकी तरफ से रिटन लेटर नीचे साइन करके वो मुझे, जो धम्म गुरु था, उसको दिखाना पड़ता है कि मेरी वाइफ से मुझे परमिशन है। और अगर ऐसे शादीशुदा नहीं है तो फिर माँ बाप की परमिशन होती है। यूजली जो माँ बाप होते हैं वो पीछे बच्चे के होते हैं। जब वो आते हैं तो वो सफेद कपड़े पहन के आते हैं, और फिर बाद में जब सारी ट्रेडिशन हो जाती है कि मैं सामने बनने जा रहा हूँ, मैं पांचशील का पालन करूंगा, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, तो फिर उसके बाद में उसको जो दूसरे भिक्षु है वो चीवर पहनना सिखाते हैं। तो फिर वो सफेद कपड़े छोड़ देते हैं और बाद में वो चीवर पहनते हैं। 3 महीने के बाद जब फिर चीवर छोड़ना होता है तो फिर वही विधि है कि वो जो चीवर है, जितनी भी आपके पास वो 5 चीजें हैं वो संघ की हैं, वो वापस देनी पड़ती हैं। क्योंकि जब मैंने तक्षशिला में ही चीवर छोड़ा था तो मैंने भंते प्रज्ञा बोधी जी को कहा कि जो चीवर है मैं निशानी के तौर पे रख सकता हूँ, क्योंकि अपने मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि ये चीवर मैंने पहना था। तो भंते कहते कि नहीं, ये आपको संघ ने दिया था, ये संघ की प्रॉपर्टी है, तो आपको ये संघ को ही वापस देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें संघ की है, वो भिक्षु की नहीं है। तो जब आप चीवर छोड़ते हैं तो फिर आपको वो भिक्षु संघ को ही वापस देनी पड़ेगी, ताकि जो आगे भिक्षु बनेगा वो उसको चीजों को दे सके। कैसा? हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन मेरे माइंड ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ देखते हैं भी ਜਿਹੜੇ आदरणीय बनते जी हैं, भिक्षु हैं, ये बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं। तो कोई मैंने जिनसे भी मैं मिला बनते जी से, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई पीएचडी है, तो इसका कोई बेसिक क्वालिफिकेशन भी होता है जहाँ बनते जी खुद इतने पढ़े लिखे होकर भी वो भिक्षु बनते हैं? इसमें थोड़ा आप रोशनी डालें तो बहुत ज्ञान हासिल होगा। थैंक यू। सामनेरी या उपसंपन्नता लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए स्कूल कॉलेज की। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुद्दता बोधी जी जो है वो बहुत छोटी उम्र में तक्षशिला में आए थे, तो उनकी श्रीलंका में जाके उपसंपदा भी हो गई है। अब वो भिक्षु है, मैं भी उनको नमन करता हूँ। लेकिन वो अब भी पीएचडी कर रहे हैं। ये तो कोरोना की वजह से वो यूनिवर्सिटी बंद है, मेरे ख्याल में वो सारनाथ में कर रहे हैं, तो इसलिए वो तक्षशिला में आए हुए हैं। तो हर भिक्षु जो है वो, जैसा आपने खुद कहा कि वो कम से कम पीएचडी बहुत विद्वान होते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो साइंटिफिक धर्म है। ऐसे तो नहीं है, हम किसी धर्म को नहीं कह रहे, लेकिन उनमें ऐसा तो नहीं है कि जो अनपढ़ लोग हैं जिनको इतना पता नहीं है उनमें हमें बहम को फैला के दान लेना है उनसे। तो इसलिए जो जितने भी भंते होते हैं वो बड़े ज्ञानवान होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। जी जी। सो धन्यवाद बिरदी साहब। और इसके साथ ही एक मिलता जुलता सवाल है जो कैन साहब ने किया कि कई बार हम देखने को मिलता है बिरदी साहब कि लोग चीवर डाल लेते हैं, फिर चीवर को छोड़ देते हैं। तो इस तरह हो सकता है? वैसे इसका क्या है कि अलाउड है? हाँ, अब मैंने एक बार चीवर पहना है,
मैं दूसरी बार भी ले सकता हूँ, तीसरी बार भी ले सकता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 7 बार, 7 बार। 8वीं बार आप नहीं ले सकते। और 60 साल की उम्र के ऊपर मर्द जो होगा उसको चीवर नहीं दिया जाएगा। जी जी। और अगर आपको कोई परमानेंट बीमारी है तो भी आपको चीवर नहीं दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, क्योंकि ऐसे तो लोग फिर बैंक से लाखों रुपया लोन लेकर भिक्षु बन जाएंगे। तो इस तरह से बहुत से सवाल जो है, जो आपका गुरु होगा, जो आपको दीक्षा देगा, तो वो आपसे पूछेगा कि आपके कहीं लोन तो नहीं है, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सारी उम्र पैसे कमा के तो बच्चों को दे दिए, अगर कोई परमानेंट बीमारी बुढ़ापे में हो गई तो भिक्षु बनकर भिक्षु संघ इलाज कराएगा। तो इस तरह से वो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। सो अभी थैंक यू, धन्यवाद बिरदी साहब। हम अभी फिर तक्षशिला महाबुद्धगयान में चलते हैं। अशोक जी, आप बनते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा फिर। अशोक जी, आप लाइव कीजिए बनते जी को वहां से। अशोक जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप बोलिए अशोक जी। आपको कह रहे हैं वो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बनते जी से बात करवाइए। हेलो, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है हमें। अशोक जी, आप जैसे आप हमारे साथ धम्मा वेद के पेज की तरफ से आप जुड़े हैं, जो तक्षशिला महाबुद्धगया से डायरेक्टली आज जो 10 दिन का सामनेर और सामनेरी बनने का कैंप शुरू हुआ है, तो बनते जी हमें बताएंगे। बनते जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आनंद। हाँ जी बनते जी, नमो बुद्धाय जय भीम। बनते जी ठीक ठाक है सब, घर परिवार? हाँ बिल्कुल ठीक है। बनते जी, आप लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज आज के प्रोग्राम का पूरा वेरवा, जो डिटेल कितने सामनेर और सामनेरी रजिस्टर्ड हुए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। अभी तो मेरे पास पहले नाम आ गए थे आनंद। अभी क्योंकि लोग बाद में आ पाए हैं, 55 करीब आए थे तो नाम, लेकिन अभी जो हम टेस्ट ले रहे हैं इनका, अभी आए हैं कुछ लोग, उपासक आने में देर हो गई, यदि आते जा रहे हैं तो टोटल तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। जब उनके पेपर लेने बाद में खाने के समय पर प्रोहित होने वाले होंगे तब हम उनको बता पाएंगे, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं। 55 नाम लिखे थे तो 55 में से और अभी आते जा रहे हैं। उपासिका भी जो है ना वो 4 हुई हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, कुछ यूपी से आई हैं, तो उनका भी नाम अभी मेरे पास नहीं आया था। तो इस तरह से अभी टोटल जो है ना हम वो दिन में बता पाएंगे भोजन के बाद में कि कितने लोग अभी हमारे प्रोजेक्ट होने वाले, लेकिन 50 और 60 के बीच में ही हैं, ऐसा है आनंद जी। बनते जी, थोड़ा बताइए कि किस किस स्टेट से जो लोग आए हैं, पंजाब से कितने हैं, बाहर के स्टेटों से कितने आए हैं? विपत्ति के पास जम्मू से 2 उपासक हैं, राजस्थान से 1 उपासक है, और यूपी से करीब, जो पंजाब में नहीं रहते हैं, जो वहाँ से चल के आए हैं, कोई मेरठ से चल के आया है, तो कोई कुशीनगर से चल के आया, कोई गोरखपुर से, कोई संत कबीर नगर चल के आया है, वहाँ से उपासक 2 आई हैं। ऐसे लोग हैं 12 लोग हैं। और जो यहाँ पंजाब में रहकर काम करते हैं उनकी संख्या, जो यूपी से हैं या बिहार से, उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और पंजाब के तो हैं ही। इस तरह से उत्तर प्रदेश हो गए, और पंजाब के, हरियाणा, वो उसके राजस्थान के, और जम्मू कश्मीर से, इस तरह से हमारे तो बनते जी, जैसे इसकी जो अब हमने देखा कि आप स्टूडेंट्स के एग्जाम वगैरह ले रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा टेस्ट के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, वो क्या टेस्ट है? हाँ, टेस्ट में पहले तुम्हारा उपासक परिचय है, उपासक किस धर्म संप्रदाय को मानते हैं, किस गुरु या शिष्य के किस परंपरा से रहे हैं, क्या उनकी
गृहस्थ जीवन में क्या या संस्कार किस तरह संपन्न करते थे उसके संबंध में परिचय है। और बाद में धर्म के मामले में जो हमारे सभी लोग चिल्लाते हैं उपासक है तो हम समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उनके गंभीर प्रश्न है जो परियत्ति के संबंध में है कि आपके दैनिक जीवन की प्रक्रिया क्या होती, कैसी होती, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार क्या है, या धर्म के बारे में आप कितना जानते हो, चित्त क्या है, कैसे काम करता है, रूप क्या है, कैसे काम करता है, निब्बान क्या है, कैसे, या जो विशुद्धियां क्या होती हैं। तथागत ने 7 विशुद्धि बताए कि उन विशुद्धि का पालन करके ही कोई व्यक्ति निब्बान को प्राप्त करता है। तो होनी चाहिए में है। तो ऐसे गंभीर गंभीर जो है और सिंपल बिना नियमों के बारे में भी, और शुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, बुद्ध के बारे में, कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे करके उनके संबंध में बहुत सारी बातें हम उसमें प्रश्न में 5 पेपर हमने किए हैं। में से दिखा रहा है कि किसके उपासक किसके संबंध का जानता है, पर्यत्ति के बारे में कितना जानता है, परिपत्ति के बारे में कितना जानता है, परिपत्ति में कितना जानता है, सामान्य जानकारियां भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में उसके पास कितनी है, क्या है। तो जिससे वो उसका पता चल जाता है कि उपासक कितना जानता है, उपासिका बहन कोई है तो कितना जानती है धर्म के बारे में। तो उसके अनुसार उसको आगे से आगे हम बताते हैं कि इसको आप इस तरह से अगर ये जानता है इस तरह से इसको इस तरह समझना चाहिए जी या फिर इतना जानता है उसका आगे उसको बताना चाहिए। जी भंते जी, जो टोटल गिनती है आपने 55 के करीब बताई है, उसमें से सामनेर कितनी है और सामनेरीज कितनी है? सामनेरी अभी 4 बनने के लिए तैयार है सामनेरी, बाकी जो है ना सामनेर होंगे। कुछ लोगों ने कल भी नाम लिखवाया था, हमें कल परसों आकर मुझे नाम लिखवाया था, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन मैंने बताया ना कि मैं रजिस्टर लेकर के इनके बीच में भी जाने वाला हूँ थोड़ी देर में, खाना खाने के बाद में, कि जो प्रयुक्त होने वाले हैं वो जो हमें नाम लिखवाया था वो पूरे आए हैं कि नहीं आ पाए हैं, या उनमें से कोई और आना बाकी है। नए भी कुछ आ गए हैं जो नहीं बनने की पहले खबर आई थी, लेकिन अब वो उनकी बनने, वो कह रहे हैं हमें भी बनना है। तो इस तरह से संख्या भी आगे पीछे हो रही थोड़ी सी। तो मैं क्योंकि सुबह से दूसरे काम में लगा रहा, तो सब उपासक खुद आ गए थे, तो सभी आए हैं, तो हम पूरा वो नहीं कर पाए उसकी वजह से, क्योंकि काम सुबह से बहुत था। तो इसलिए आनंद थोड़ी देर में जो है मैं डिटेल करके इसका पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास पूरे टोटल कितने हो गए हैं, तो कैसे क्या उन्होंने नाम रखे हैं, क्या उनके नाम पहले होते थे, क्या उनके दोबारा नाम रखे गए हैं, किस तरह से हैं उपासिकाएं, और या सबका डिटेल बताएंगे आपको। है बंतो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर आपके साथ थोड़ी देर बाद में जुड़ेंगे। और मैं अशोक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज पूरा लाइव हमें वहां से जोड़ा है। हम आपका और सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर फिर हम लाइव करेंगे आपको, और उसका भी हम चलते हैं जो हमारा पैनल है, जो कोई सवाल है। बंते जी, आप आई नो आप बिजी हो, कोई बात नहीं, आप फिर हम जुड़ते हैं। खाने का समय नमो बुद्धाय। थैंक यू अशोक जी। फिर बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और फिर हम आपके साथ 10-15 मिनट के बाद फिर जुड़ते हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहते हैं अशोक जी? आपको कैसा फील हो रहा है वहां से? बहुत ही अच्छा लगा, बढ़िया लगा। जितना भी मेरे से हो सकता है उतना मैं करके आप तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं? कैन साहब? नहीं, बहुत धन्यवाद अशोक जी का और बंते जी का, जो काफी अच्छी तरह ये जो वहाँ प्रोग्राम लिखा गया है उसका कवरेज कर रहे हैं। और बंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये बहुत शलाघा जो कदम उठाया है। और पहले भी बंते जी बहुत वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो 10-15 साल से वहाँ आ जा रहे हैं बुद्ध विहार में, और हमेशा ही बंते जी का जो व्यवहार है बहुत अच्छा होता है लोगों के साथ, और बड़ा प्यार से सभी को भाई कहकर, बहन कहकर बुलाते हैं। तो इससे जो लोग हैं बहुत उस बुद्ध विहार में जाना अच्छा लगता है उनको। और एवरी संडे, एवरी एतवार को हम देखते हैं, जब भी वहाँ जाते हैं तो काफी लोग आते हैं और बंते जी से बुद्ध प्रवचन सुनते हैं।
और बुद्धम की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। सो अगेन एक बार फिर हम बनते प्रज्ञा बुद्ध जी का और वहाँ की कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस तरह के शलाघा जो कदम उठाते हैं बुद्धिज्म की तरफ। और अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इतना टाइम निकाला ये कवरेज देने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। अशोक जी, फिर हम अगर आप वहां पे हैं तो 15 मिनट के बाद फिर हम आपको आपके साथ कनेक्ट करते हैं अशोक जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सो अभी हम जो सवाल जो आपका सिलसिला है वहाँ फिर वही चलते हैं। तो बिरदी साहब, एक और सवाल है जो जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो कौन भिक्षु बन सकता है, उसकी कोई कोई क्वालिफिकेशन है, भिक्षु कैसे बनते हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो भिक्षु बनने के बाद 227 असूल आपको मानने पड़ेंगे। वो 227 तो हमेशा याद नहीं रख सकते, जो मेन है वो 5-6 है। उसके बाद में तो वो डेली लाइफ में मैनर्स जिसको कह लें हम कि ये करना है वो नहीं करना है, तो इस तरह से है। लेकिन भिक्षु बनने के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि अगर शादीशुदा है तो वाइफ की परमिशन होना चाहिए, अगर शादीशुदा नहीं है तो माँ बाप की परमिशन होना चाहिए। तो लेकिन स्कूल कॉलेज की कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपके दिल से है कि हमें भिक्षु बनना है। भिक्षु बनने की 2 साइड है। एक तो ये भी है कि आपकी लाइफ पीसफुल है, लेकिन जब आप भिक्षु होते हुए दूसरे परिवार वाले लोगों की तरफ देखते हैं कि उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी है, वाइफ है, माँ है, भाई बहन है, तो वो एक जो सोशल लाइफ है उसमें रह रहे हैं। लेकिन जो एक भिक्षु होता है उसके लिए ये सब नहीं होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं तक्षशिला में था तो मेरी सास आई वहाँ विहारा में, तो क्योंकि मेरी भी लाइफ में पहली बार था, तो मेरी सास ने जो मेरी माँ समान है उन्होंने भी मेरे पैर छुए और मुझे बाकी लोगों की तरह मुझे प्रणाम किया। तो क्योंकि हम उससे यूज्ड टू नहीं है तो हमें वो बहुत एक हैरानी लगती है। अब देखो कि कितना, अब भंते बुद्धता जी है वो मेरे यानी बच्चों के बच्चों की उम्र के हैं, लेकिन अब वो भंते हैं। मैं उनको जितनी बार भी लंदन से फोन करता हूँ तो बंदामी भंते जी कहता हूँ और वो मुझे कहते हैं सुखी रहो। देखो मेरी उम्र में कितना छोटे होने के बाद मुझे उनको झुक के प्रणाम करना पड़ता है। तो ये एक भिक्षु का सम्मान है, लेकिन उसके लिए उसका त्याग भी है। अब भिक्षु ये किसी को नहीं कह सकता कि मुझे ये खाना पसंद है, मैं जिस दिन आऊंगा ये बनाना, तो जो बना होगा वो खाना होगा। तो यहाँ पर अच्छा भी है लेकिन सेक्रीफाइस भी बहुत है। मैं अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ। जब हम तक्षशिला में थे तो जो केयर टेकर था वो बेचारा यूपी से था, उसको खाना इतना अच्छी तरह बनाना नहीं आता था। तो मुझे जो दाल होती थी उसमें जो दाना है, जैसे पंजाबी में कहते कि चुप्पी मार के फिर वो ढूंढना पड़ता था। तो एक बार हमें बंगा में जो कैंट साहब का जगह है तो वहां पर भोजन दान था। वो मुझे पता था कि वो बैंक का मैनेजर है जिसके घर में भोजन दान है। तो मैं एक हफ्ता पहले ही मेरे दिमाग में था कि वे जो वहां बंगा में भोजन होगा वो अच्छी तरह से खाएंगे। तो क्योंकि हम भी आफ्टर ऑल हम भी इंसान हैं, तो फिर जब हम वहां गए मुझे अब तक मेरे दिमाग में वो पिक्चर है कि वो मैंने अच्छी तरह से पेट भर के वहां पे खाया। तो इस तरह से है कि वो सेक्रीफाइस भी है। तो जब मैं थाईलैंड से गया वापस तो मैंने कहा कि उसमें जरा दूध ज्यादा डालना। तो वो जो केयर टेकर था चाय की प्लेट सभी के लिए लेकर आया। तो उन्होंने पूछा कि ये दूध वाली चाय किसके लिए है? तो केयर टेकर ने कहा मेरा नाम उस वक्त
थीता पुण्यो था। थीता पुण्यो का मतलब कि जिसने इतने पुण्य किए हैं वो कभी खत्म नहीं होते। तो वो कहने लगा कि ये थीता पुण्यो के लिए है। तो वो कहने लगे बनते कि अब भिक्खू तो सब भिक्खू है, उस वक्त मैं लंदन का एचएल वर्दी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि थीता पुण्यो को बोल देना कि कल को आपको इसमें या तो नींबू मिलेगा या अदरक मिलेगा, लेकिन दूध नहीं मिलेगा, चाय में दूध नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सी जो कंडीशंस होती है, बंदिशें होती है, वो आपको माननी पड़ती है। लेकिन बहुत सुकून भी है, बहुत त्याग भी है उसमें। जी। सो बिरदी साहब, हमें कई बार जब हम बुद्ध विहार में जाते हैं तो हमें ये देखने को मौका मिलता है कि कई बार जो ओल्ड एज के जो भिक्खु होते हैं वो यंग एज जो भिक्खु होता है, कई बार उनको भी वो वाव करते हैं, उनको वाव करते हैं। सो ये भिक्खु की एज से एज की वजह से उनको वाव करते हैं, या भिक्खु की एज चीवर टी एज के जैसे मिनी जाती है, तो कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है? हाँ, वो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो जो एक भिक्खु दूसरे भिक्खु को नमन करता है, वो उनकी अपनी एज से नहीं करते। यानी अब मैं 69 का हूं, तो जब चीवर मिलता है, और चीवर मिलने के भी बाद भी उसने वर्षावास कितने किए हैं, क्योंकि मानो किसी वजह से वो वर्षावास नहीं कर पाते, तो वो उसका साल नहीं गिना जाता। तो उसने कितने वर्षावास किए हैं, उस लिहाज से उनकी उम्र है। जैसे अब मुद्दता जी है, तो भिक्षु बनने के बाद उनके कितने चीवर हो गए हैं, और मानो मैं अभी भिक्षु बनता हूं, तो मुझे उनको नमन करना है, क्योंकि वो उम्र में चाहे मुझसे कम है, लेकिन उन्होंने वर्षावास मुझसे ज्यादा किए हैं, तो मुझे उनको नमन करना पड़ेगा। तो जो आपने कितने वर्षावास किए हैं, उसकी वजह से आपकी सीनियरिटी जो वो होती है। बहुत बढ़िया। और कैन साहब का कोई क्वेश्चन है? कैन साहब प्लीज गो अहेड। ये बहुत मेरे को अच्छा लगता है। देखो हमारे साथ जो बिरदी साहब हैं, वो कितना ज्ञान रखते हैं, और इसमें जो बुद्धिज्म में जो सबसे बड़ी बात जो मेरे को जो अच्छी लगती है, वो ये है कि देखो एक ज्ञान को प्रणाम होता है, ना कि उसमें एज का कोई नहीं है कि एज बड़ी है या छोटी है। और इसका जो बुद्धिज्म में एक बहुत ये बड़ी बात है कि जब वो देखते हैं ना कि जैसे गुरुओं के पीछे वो लाइट है, असल में वो एक जो एनलाइटनमेंट है, जो जैसे जो लोगों को दिखने में तो लाइट लगती है, मगर वो एक साइन है, एक चिन्ह है कि वो भी बुद्ध की तरह इनलाइटेड हुए थे। मगर हमारे लोगों ने उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पेश किया है इतिहास को। तो जो अब हम बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, हमारे लोग बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो ये उसका एक गुण और उसका मेरिट एक बहुत बड़ा है कि हम इनलाइटन की तरफ जा रहे हैं, हम एक ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है, और ज्ञान भी जो एजुकेशन है, जो रियल एजुकेशन है, वो हमें मिल रही है। चाहे वो छोटी एज में है, जैसे बनते मुदिता जी हैं, छोटी एज में है, मगर देखो वो पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी करने से उनको वर्ल्ड का ज्ञान हो रहा है। बुद्धिज्म का तो ज्ञान उन्होंने ऑलरेडी लिया है, मगर उनको वर्ल्ड का ज्ञान हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं। तो इससे हमारे जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो कितना इम्प्रेस होगी कि देखो एक भंते जी जो भिक्षु के बेस में है, वो कितने इनलाइटेंड भी है, और कितने स्टडी के एजुकेशन भी उनके पास कितनी है। ये बहुत एक बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये इसके माध्यम से हमारे जो यंग जनरेशन है, उनको और अट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखो बुद्धिज्म में ज्ञान का कितना प्रचार और प्रसार हो रहा है। धन्यवाद आप सबका। आनंद जी, अगर टाइम हो तो मैं लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लंदन में पटनी शहर है, तो वहाँ पर जो अहमदिया मुस्लिम है पाकिस्तान से, उनकी मस्जिद है।
तो जो हमारे लंदन बारो ऑफ ईलिंग के मेयर थे माधवराव पाटिल, आज वो हम में नहीं है, तो वो मुझे साथ ले जाते थे एतवार को। तो वहां पर उनको एज अ मेयर बुलाया था, तो मैं भी उनके साथ गया। तो उनके जो जिन्होंने ये अहमदिया मुसलमान गुरदासपुर से शुरू किया, उनके पोता, उनके ग्रैंडसन थे, वो नाम मुझे याद भूल गया। तो वो आए, हम सभी फ्रंट लाइन में बैठे थे। तो वो कहने लगे कि सभी लोग अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने खड़ा होकर अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं HL विद्या बुद्धिस्ट हूँ, तो कुछ किताबें लिखी हैं। तो जब मैं बैठने लगा तो वो कहते हैं आप विद्या साहब खड़े रहिएगा। तो वो कहने लगे मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो मैंने कहा भाई इतने पढ़े लिखे हैं, मुसलमानों में, अहमदिया मुसलमानों में इतनी बड़ी उनकी पोजीशन है, और मैं तो उस वक्त यंग भी था। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि विद्या साहब मैं श्रीलंका गया, आप लोग सुपर पावर को नहीं मानते, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वो 18-20 साल का भिक्षु आया, वो उसको प्रणाम करता है, तो ये क्यों है? तो फिर मैंने उनको बड़े डिटेल से समझाया कि उनका जो त्याग है, वो जो 227 असूल मानते हैं, वो शादी नहीं करा सकते, दिन में 12 बजे से पहले एक बार खा सकते हैं, सिर की शेव करनी पड़ती है, माँ को माँ नहीं कह सकते, पिताजी को गले नहीं मिल सकते, जो तो ये उनका त्याग है। उनकी उस त्याग को हम प्रणाम करते हैं, उसके आगे हम झुकते हैं। तो इस तरह से ये बातें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के सामने आएंगी। लेकिन मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि डॉक्टर इकबाल की बात सुनो, एक कट्टर मुसलमान होते हुए वो क्या कह रहे हैं। मैं पूरा शेर नहीं कहूंगा टाइम की वजह से। तो वो शुरू ऐसे करते हैं कि कौम ने पैगामे गौतम की जरा परवाह न की, कदर पहचानी ना अपने गौहरे चिकदाना की। तो गौहरे चिकदाना जैसे कोहिनूर हीरा है, एक हीरा होता है। तो वो शेर के आखिर में जाकर कहते हैं, आखिरी 4 लाइनें, शूद्र के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्दे इंसाफी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। ये तो सब समझ गए हैं। आखिर की जो लाइनें हैं बहुत गहरी हैं। ब्राह्मण सरसार है अब तक मैं पदार में, क्षमा गौत में जल रही है महफिले अग्यार में। तो वो क्या कहते हैं कि आज भी भारत में, ये डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि आज भी भारत में जो ब्राह्मण है वो अपने झूठ का जाल बिछाए हुए लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जबकि जो गौतम बुद्ध है उसकी जो शिक्षा है वो लोगों को रोशनी का रास्ता दिखा रही है। तो ये डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं, और वो रोशनी जैसे जैसे साइंस आएगी वैसे वैसे दुनिया में और बढ़ेगी। क्योंकि जो जर्मनी के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी कहा है, हालांकि वो खुद ईसाई धर्म को मानते थे, या ईसाई धर्म में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि साइंस की दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म चलेगा और वो है बुद्धिज्म। तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ इसलिए मैं बुद्धिज्म की तारीफ कर रहा हूँ। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैं ना जाने किन लफ्जों में उनका मैं धन्यवाद करूं कि जिन्होंने 50 साल स्टडी करके मेरे बुजुर्गों का धर्म मुझे दे दिया है। मेरे लिए वो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा वरदान है। थैंक यू। आपकी आवाज म्यूट है आनंद जी। जी जी। सो साथियों, जैसे आप
हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज का कुछ खास प्रोग्राम आपको हमने लाइव दिखाया है, जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार से लुधियाने से आपको लाइव जो दिखाया है, जो 10 दिन के लिए सामनेर और सामनेरी बनने जा रहे हैं। आज उसकी जो एक ओपनिंग इनॉग्रेशन थी वो 10 दिन चलेगा लगातार, और उसके बाद हम जो जिस दिन इसकी एंडिंग सेरेमनी होगी फिर भी हम आपको वहां से लाइव दिखाएंगे। और एक जो लास्ट 2 सवाल बेदी साहब मैं आपसे करूंगा, उसके बाद हम जो लाइव प्रोग्राम है इसको एंड करेंगे आज का। सो कई बार बेदी साहब हमने देखा कि जो हमें जो दम है ये हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें दिया, तो हम फिर बुद्धिज्म रिवाइव हुआ बात के अंदर। पर आज भी कुछ जो लोग जो वो इतना चीवर को मान्यता नहीं दे रहे, अपना धर्म होते हुए भी उसके उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए आनंद जी, ये अपनी अपनी समझने की बात है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हम जो चीवर में इंडिविजुअल है उसको प्रणाम नहीं करते, हम वो चीवर को, उनके त्याग को, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनकी जो नॉलेज है, जो जैसा पहले का कि आप जितने भी भिक्षु आपको मिलेंगे वो सभी किसी न किसी डिग्री वाले होंगे। ऐसा नहीं कि चौथी 5वीं कक्षा से वो फेल होकर भिक्षु बने हैं, तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम चीवर को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हालांकि वो कितने विद्वान थे और हर कितने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते थे, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को आप देखोगे कि नागपुर दीक्षा भूमि में चंद्रामणि जी को वो कैसे झुक के प्रणाम कर रहे हैं और भगवान बुद्ध के स्टैच्यू को वो कैसे प्रणाम कर रहे हैं। ये तो अपने अपने समझने की बात है। हर इंसान में जो ईगो बहुत होती है, अगर कोई आदमी बाबा साहब की 4-5 किताबें पढ़ लेता है, बहुत धम की किताबें पढ़ लेता है, तो फिर वो अपने आप को भाई विद्वान समझने लग जाता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें देखो, जो 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 पेड़ मीठे फल देता है लोग उसको ही डंडे मारते हैं, जिसको कांटे ही कांटे होते हैं कभी बचपन में लोग उसको डंडे नहीं मारते। तो अगर भिक्षुओं पर भी कोई क्रिटिसाइज करता है, अरे भाई उनको मीठे फल लगते हैं, वो अच्छा हमें संदेश देते हैं, तो नेचुरल है कि लोग डंडे मार के वो फ्रूट को जल्दी उतारना चाहेंगे। लेकिन भिक्षु का सम्मान करना चाहिए। अगर देखो जी, भगवान बुद्ध ने जो विनय पिटक है उसमें सब बनाया है, भिक्षु भी हमारी तरह इंसान है। अगर वो कोई गलती करते हैं, आउट ऑफ लाइन जाते हैं, तो हम जो संघ नायक है, जैसे प्रज्ञा बुद्धि जी वहां पर है, हम उनसे उनकी शिकायत कर सकते हैं और वो भिक्षु को बुलाकर पूछेंगे कि आपने क्या ये गलत बात कही है, और वो जब मानेंगे तो उनको उसकी सजा दी जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, हमें भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं तो हमें प्रॉपर ढंग से उनको कहना चाहिए। सो बिरदी साहब, आप काफी पंजाब में आते जाते रहते हैं हर साल, और पूरे भारत के अंदर आप ट्रैवल करते हैं। जितनी बौद्ध जो बौद्ध विहार हैं, और तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पंजाब में कितने बौद्ध विहार हैं और कितने पंजाबी भिक्षु हैं? पहली बात तो ये है कि मेरे एक दोस्त यहाँ लंदन में हैं, तो वो मुझे बुद्धिस्ट वास्को डी गामा कहते हैं कि भाई आप तो सारी दुनिया घूम रहे हैं। मेरे लिए हम घूमे भी क्यों ना। जिस हमारे बाबा साहब को बैलगाड़ी पर बैठने नहीं दिया, बाबा साहब ने मुझे एरोप्लेन के टिकट ले दिए हैं कि बेटा दुनिया में जहाँ चाहो हवा में घूमो। तो वो बाबा साहब की मेहरबानी है, हम घूमते हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है, जैसे हम एक बल्ब होता है ऊपर, एक एनर्जी ट्यूब होती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं जो बल्ब है वो तो उसी वक्त उसकी लाइट आ जाती है, लेकिन जो ट्यूब है वो 4-5 सेकंड के बाद जाती है। तो पंजाबियों की यही बात है
कि जब हम स्विच ऑन करेंगे उनको 5-6 सेकंड लगेंगे जगने के लिए। तो पंजाब में कुछ जो धमका है वो स्लो है, खास करके भिक्खू का। पहले जगतानंद जी पंजाबी भिक्खू थे, दे आर नो मोर विद अस। तो अब हमारे चंद्र कीर्ति जी हैं, वो पंजाब में एक ही एक भिक्खू है। और हम इन फ्यूचर उम्मीद रखते हैं कि कुछ लोग अपने बच्चों को, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी जब एक बार अपने गुरु से कहा कि मैंने मध्य एशिया में, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैला दिया है, क्या धर्म के लिए मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है? तो अशोक को भी भिक्खू संघ ने कहा कि नहीं, आपको अपना जो परिवार में से जो बच्चे हैं उनको भिक्खू बनाना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे महिंदा को भिक्खू बनाया और बेटी संघमित्ता को उन्होंने भिक्खू नहीं बनाया। तो इस तरह से पंजाब में जब तक लोग अपने बच्चों को धर्म को समर्पित नहीं करते, उतनी देर पंजाब में कंस्ट्रक्टिव बुद्धिज्म का काम होने वाला नहीं है। बाकी जो बुद्ध विहार है वो तकरीबन 18-20 के करीब पंजाब में बुद्ध विहार बन चुके हैं। जी जी। और जैसे हमारे बनते अभी प्रसन्नो जी जो वुलवरहैम्पटन वहाँ पे हैं, मेमोरियल कमेटी जहाँ पे बुद्ध विहार वहाँ पे रहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी, क्योंकि वो इंग्लैंड में है, मैं अपने दिमाग में पंजाब की पिक्चर लिए बैठा हूँ। हाँ, तो ये कह सकते हैं अभी प्रसन्नो जी भी हमारे दूसरे पंजाबी भिक्खू हैं। जी 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 हाँ, उनका भी बहुत योगदान है जो पीस पगोडा पंजाब में स्थापित किया। और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी तरफ से सारा योगदान डाल के उन्होंने एक बहुत अच्छी इमारत, और बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं और हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और लास्ट जो सवाल है, जैसे बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने सारा धन दे दिया, दौलत दे दी और समय भी दे दिया, तो क्या मेरी जो कंप्लीट हो गई सेवा बुद्ध धर्म की तरफ से? वो कैसे कंप्लीट धर्म में कैसे उसको कंप्लीट मानते? सिर्फ पैसा या समय देने के लिए कंप्लीट मानते, और भी कुछ इसके आगे है? नहीं, देखो हमारे पंजाबी में कहावत है ना, तन मन धन, तीनों दे, तीनों नहीं दे सकते, दो दे, दो नहीं, एक दो। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आज के तारीख में भारत में, क्योंकि खास करके जैसा मैंने कहा नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में जो धन देते हैं, पैसा देते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भिक्खू जो बनाना है, जो भिक्खुनी बनाना है, वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जैसे आज वहाँ पे जो सीमा है, जो भिक्खू या भिक्खुनी है वो सीमा में ही बन सकते हैं। और नॉर्थ इंडिया में ये जो हमारे तक्षला है, ये सीमा है, ये भिक्खुओं का कोर्ट है। तो अब हमारे लिए खुशी की बात ये है कि जो शराबस्ती है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय बिताया, उन्होंने 25 वर्षावास वहां पे किए। तो भारत में सबसे पहला और एक ही एक भिक्खुनी ट्रेनिंग सेंटर भी वहां पे चल रहा है। तो अगर कोई लेडी, अगर कोई मेरी बहन भिक्खुनी बनना चाहे तो वो वहां पर श्रावस्ती में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां पे भिक्खुनी ट्रेनिंग सेंटर थेरी धम्म मेगा, जिनकी संपत्ता श्रीलंका में हुई है, तो वो वहां पे भिक्खुनी ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। तो ये लेडीज के लिए बड़ी इनकरेजिंग बात है कि अगर वो भिक्खुनी बनना चाहें तो वो शराबस्ती में जाके भिक्खुनी बन सकते हैं। जी जी। सो साथियों, फिर मैं आपको बताता चलूं कि जो आज का जो प्रोग्राम आपने लाइव देखा है वो तक्षला महाबुद्ध विहार से हमने लाइव किया। जो 10 दिन का वहां से कैंप जो लगा है सामनेर और सामनेरी जो बनने जा रहे हैं, वो 10 दिन का, उसकी जो आज इनॉग्रेशन है और जो ओपनिंग सेरेमनी हमने आपको दिखाई कि कैसे जो 55 के ऊपर जो सामनेरी बनने के लिए वहां पे उपासका आए और उनकी रजिस्ट्रेशन हुई। आज उन्होंने जो एग्जाम, एक छोटा सा एग्जाम
बंटे जी ले रहे थे, आपने लाइव देखा। और मैं पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी पंजाब रजिस्टर्ड उनका धन्यवाद करता हूँ, जिनकी जो उनके वहाँ से प्रेसिडेंट हैं हरभजन सांपला जी, और महाथेरो बंटे प्रज्ञा बुद्धि जी, जिनके पूरी देखरेख से जो तक्षशिला विहार का जो कार्य चलता है। उसके साथ ही पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी यूके जो सहयोगी, और उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो यूके की हमारी जो दम्मावेव की जो टीम है, उसके अंदर जैसे हरबंस बिरदी जी और कृष्णविंदर कुमार जी और मनोहर बिरदी जी, और उनके साथ धर्मचंद महेश जी, ये हमारी एक यूके की टीम है। भारत की भी हमारे साथ टीम है, और कनाडा की जो टीम है उसके अंदर जो परम कैन जी हैं, और सुरजीत बैंस, महेंद्र सल्लन, जगिरी बैंस और चंचल हरजिंदर मान जी, वो हमारे कनाडा से सहयोगी हैं। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विधि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंग्लैंड में बहुत अर्ली जो 4 बजे उठ के इस प्रोग्राम के अंदर आप शामिल हुए। और मैं मनोहर बिरदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो भी 4 बजे, और कृष्णविंदर जी वो भी 4 बजे से उठ के, जो इंग्लैंड में बहुत अर्ली था। कृष्णविंदर जी पूरा इस प्रोग्राम को लाइव स्प्रेड करने में वो एक बैक स्टेज में हमारा सहयोग दे रहे थे, और मैं कृष्णविंदर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, आज इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जब 10 दिन का जो एंड की सेरेमनी है, फिर हम आपको लाइव तक्षशिला के इसी दम्मावेव के चैनल के जरिए आपके साथ रूबरू होंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक सूचना देता जाऊं कि जो दम्मावेव का लगातार जो हम प्रोग्राम लेके आएंगे, उसका वेरवा मैं इसके बिरदी साहब के मैसेज के बाद दूंगा। तो बिरदी साहब, गो अहेड प्लीज। मैं तो सिर्फ हमारे जो यंग मैन स्क्रीन के पीछे काम कर रहे हैं, खुशविंदर जी का धन्यवाद हूँ, और आप हमारा सेंटर पॉइंट है, आपका धन्यवाद करता हूँ। कनाडा के जो हमारे साथी हैं, जितने भी अम्बेडकरी हैं, जिन्होंने वहाँ से पैसे की मदद की है, आज जितने सामनेर और सामनेरियाँ बनने जा रहे हैं, उनके लिए खाने का कुछ ब्लैंकेट भी खरीदे होंगे। तो जो कनाडा के हमारे भाइयों ने बहनों ने मदद की है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं यूके को छोड़ नहीं सकता। हमारे पंजाब बुद्ध सोसाइटी के प्रेसिडेंट रामपाल राही जी ने सबसे लोगों से हमारे पैसे इकट्ठे करके ये जो आज का समागम है उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प जो यूके से की है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पंजाब से भी जो लोग पैसे की नहीं कर रहे, आज वो सुबह सुबह आए हैं, खाना बनाएंगे, हर तरह से वहाँ पे सहयोग देंगे, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, और साथ ही बिरदी साहब, अशोक जी का भी इससे बहुत सारा धन्यवाद उनका भी बनता है, क्योंकि उन्होंने सारा प्रोग्राम जो लाइव वहां से हमें तक्षशिला से जोड़ा, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं आपको सूचना दे दूं, क्योंकि दम्मावेव जो चैनल हमने शुरू किया है, तो यहाँ से सिर्फ दम का सार प्रसार होगा, और उसी को हम देखते जो अगला जो स्केड्यूल है हमारा 14 फरवरी का, वैसे हर फुल मून के डे के ऊपर हम तक्षशिला से लाइव होंगे। और जो हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, जैसे बिरदी साहब हैं, मनोहर बिरदी जी, और भारत से हम स्कॉलर लेंगे, और फुल मून की जो पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महानता है बुद्ध धर्म के अंदर। और वो तो हम लाइव करेंगे तक्षशिला महाबुद्ध विहार से। लेकिन जो 14 फरवरी को हम भिखुनी द मेगा थेरी जो शरावती से, जैसे बिरदी साहब ने बताया कि भिखुनी ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से हम उनको लाइव करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है भिखुनी से बात करने का। सो ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि हम उनसे जो कैसे भिखुनी संघ कैसे चलता है, उनकी जैसे 227 भिक्षु के रूल हैं, बिरदी साहब, भिखुनी के 311 है शायद। हाँ, 310 या 311 हैं। हाँ जी। सो वो जो जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में हम उनसे जानेंगे। उनके साथ जो कोस्ट होंगे हमारे बहन जी मनजीत बहन जो वैंकूवर में रहते हैं, वो को होस्ट होंगे।
14 फरवरी को। सो प्लीज स्टे ट्यून, हम फिर भी आपको एक पोस्टर के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। इसी के साथ हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। नमो बुद्धाय, जय भीम।